is round 155. Education round 155, sorry. Yeah, it's a different thing. Education round 155 happened yesterday, 24/9/23. And this is the first problem. Given number T test cases n number of athletes, each athlete has strength and endurance. So what you want is that you want first player to win, first athlete to win, and you have to tell, okay, what weight should I choose so that first athletes win the competition. Okay, there may be cases that it's not that first one wins, then you return -1. When first one is not able to, like, yeah, you can't make him win. So what you need to do is actually, if I show you my look, first what is the problem? Yeah. So every athlete has strength and endurance, right? So who will win? The one having maximum strength? No, actually. You let's say assign a weight. Okay, so this is a problem regarding to weightlifting. So you assign a weight to the barbell. So barbell, let's say you assign weight equal to x. So every person who has strength greater than x will be able to lift it. I want first person to win. So the barbell weight should be equal to first person's weight. Okay, so he is able to lift it. But why not greater than that? Then he will not lift it. Why not smaller than that? Let's say we are having smaller than that. He can lift it still, but there is chances that others can also lift it, right? Okay, so let's say I make the weight equal to 0, then everyone can lift it. Okay, well, it's not possible, but let's say weight equal to 1, everyone can lift it. Okay, I want only this person to lift and no one other to lift it. Okay, so everyone who has strength lesser than this one will not be able to lift it. Okay, if I assign the weight equal to this, okay, whatever the weight will be, and every person who has strength lesser than that weight will not be able to lift. So the best thing which I can do is that I cannot go greater than 7. Okay, if I want to make 7 win, cannot get greater than 7, but I can make it equal to 7 so that everyone who has strength lesser than 7 cannot win. And if there is any person who has strength greater than 7, then bro, yeah, he will lift it. So you cannot do anything about it. But then there comes the second thing, endurance. Endurance is how many times he will lift the, okay, so this person, let's say he has yeah, just my athlete, okay, my person, first person, he will lift obviously, and how many times he will lift, that depends on endurance. Okay, and now there is some other person who can also lift, who has strength greater than him or equal to him or whatever, right? Equal to or greater than, then he can lift, but his endurance is less. So still I win because I lifted more number of times. So let me just quickly, I think I've given you the basic idea about the problem. First thing is the weight and the barbell which you need to assign, and then you all are already given this persons, each person and their strength and their weight. So who can lift the barbell? I think that should be very clear. First thing is that everyone who has weight, not weight, strength greater than equal to my strength. Okay, because I can lift it, I have to lift it obviously. Yeah, I'm the first person. Okay, if I'm talking on the behalf of the first athlete that I want to make him win, so the first person will lift it obviously, that's what I want. So I will assign that weight to the barbell so that he can lift it and nobody else who has lesser than that weight. So I don't need to care about them, so at least I'm free from them. Even if they have so many endurance, if they have 100 endurance, 50 endurance, like infinite, I don't care because they cannot even lift it. Okay, endurance is sometimes how many times he will lift it, that we care about only the persons who has strength greater than equal to me. So now there comes that chunk, that is the main chunk, who has strength greater than equal to me. And then you see, if I am the one who are having the greatest endurance among these people, then you will win, and otherwise you will return -1. So in this scenario, like 7-4 is actually greatest, because weight equal to 7, you get it, like weight will be equal to 7, in this case weight will be equal to 4, in this case weight will be equal to this 1337. That's very thing, very short. Now, when the weight is equal to 7, who can lift it? These two people can lift it. Who will win? First person will win because 4 is greater than 3. Endurance is greater than that. So, in this case, okay, weight equal to 4, I am assigning. Who will win? Okay, second person, because he can also lift it up and obviously he'll do more reps. So, in this case, both will do equal reps. So, you cannot decide winner. So, in this also -1. So, that's what I need to do. Like, I thought you got the idea. This case I can explain. So, let me just talk the code before showing the code. The talking of the code is like, say I taken the input, okay, then I
then I got my thing. Okay, who's I got all the people. Okay, so I do a for loop for that, and I have stored for each person. I have stored a vector of vector which contains v of I is equal to person of I. Person of I is equal to his strength and endurance, the pair of that. Okay, then I do a for loop, and then I see all the people who have strength greater than equal to me. Okay, me is just a first person, so who has strength greater than equal to the strength of the first index. Okay, okay, and then you see their endurance. If their endurance is also greater than equal to the first index, and obviously I'm not seeing the first index, I'm starting from 1. Okay, my index starts from 1, so I'm only seeing these people, these three people. I'm only seeing this people, I'm only seeing this people, and the thing check which I'm putting is that greater than equal to strength should be greater than equal to this, endurance should be greater than equal to this, then return -1, otherwise you return your first thing. First thing means like you return weight, or weight is equal to the strength of first. Okay, so that's why I return the strength of first. We have 0, 0 is the strength. Okay, so as I said, vector of integer, vector of vector, and where each vector is the AB, which is strength comma endurance. So if this condition holds true, greater than equal to this, greater than equal to this, return -1, otherwise return this. Let's go back to the second problem, right? I think that's pretty much clear and this is pretty much straightforward. And chips on the board, this also I would say straightforward, but there is a kind of a trick, but no. D number of disks is the number n and a and b, and minimum possible cost of putting chips according to the rule. Okay, so you are given this matrix and you have to insert chips in this matrix, and when you yeah, whenever you insert chip, let's say this becomes black. Okay, so minimum total cost of putting chips. Now rules, what are the rules of putting chips? So you can you have to put chip in either every cell or every column or both. Okay, what does both mean? Both means the diagram. In that case, you will be filling up each row as well as each column, because this is n cross n, and yeah, you will always have a perfect diagonal thing. And yeah, so either fill a complete diagonal, fill a complete row, or fill a complete column. But a diagonal is not a kind of a special scenario which you need to think about. So just think about completing the, okay, because okay, completing one row. Okay, in this case, are you completing all the rows? No, because you are touching the first row and then you are touching the third row using your chip. In second row, you can see there is no chip. Okay, why I did that? I did that because it minimizes my overall cost. Okay, so in this scenario, 1 comma 3, what is the cost of 1 comma 3? It is yeah, a of 1 plus b of 3, which is 1 plus 2. A of 1 plus b of 2. Okay, a of 2 plus b of 2. Row 3 is equal to 1, right? I could have just taken this 3 as well, and this would be same cost, but this is also same cost structure. So in that case also the columns are you are covering. Okay, so देखो सीधी बात इसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि ए और बी में से तुम्हें क्या करना है, ए का मिनिमम उठाओ, ठीक है, उसको बी के हर नंबर के साथ ऐड कर दो, ठीक है, दिस इज योर वन थिंग, एंड देन यू गेट दिस एज एन आंसर कि ए का मिनिमम इनटू एन टाइम्स आएगा, क्योंकि एक दो तीन तीन बार आया, दिस दिस द बेस्ट ना कि ए में से सबसे मिनिमम तो मैं ये उठा सकता हूँ, मैं कॉस्ट उठानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अब बताता हूँ कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि चिप्स ऐसे इंसर्ट करने हैं कि तुम्हारा ए में से कोई एलिमेंट आए और बी में से कोई एलिमेंट आए, ठीक है, but you have to cover each index either in B or in A or in both. Okay, what do you mean by covering each index in B? Is that कि भाई 3B plus हो, 2B plus हो, 2B plus हो, that is one thing. और इसके साथ तुम यहाँ से कुछ भी उठा सकते हो, एक नंबर उठा लो चल जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है सारे उठाने। सारे उठाने का क्या मतलब है कि इधर से भी 1 भी उठाया, 4 भी उठाया, 1 भी उठाया, ठीक है, दिस इज वन थिंग। तो इसमें जब ऐसे मान लो कि जब तुम 1 4 1 उठा रहे हो ना,
इसका मतलब तुम सारी रो उठा रहे हो, ठीक है। 1 भी उठाया, 4 भी उठाया, 1 भी उठाया, तुमने सारी रो उठा ली। तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, या तो सारी रो उठा लो, या तो सारे कॉलम उठा लो, या तो डायगनल उठा लो, ठीक है। जिसमें तुम्हारे रो भी हो जाएंगे एंड कॉलम भी सारे उठेंगे, सारे कॉलम भी उठ रहे, सारे रो भी उठ रहे, बट डायगनल उठा लो, ठीक है। डायगनल उठाने का मतलब क्या है, 1 + 3 + 2 + 4 +1 + 2, जो कि हम नहीं करेंगे क्योंकि इट्स नॉट अ गुड। इन दिस केस सबसे छोटा आंसर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सारी रो उठा रहे हो, नहीं जब तुम सारे कॉलम उठा रहे हो और रो तुमने बस एक चूज कर ली, या तो 1 या वाली, या तो थर्ड वाली, या तो ऐसा कॉम्बिनेशन, क्योंकि 1 और थर्ड एक ही है, काइंड ऑफ 1 1, ठीक है। तो यही इसका लॉजिक है यार। आई थिंक मैंने ठीक से एक्सप्लेन कर दिया है, बिकॉज फर्स्ट थिंग विच आई सेड इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। द फर्स्ट थिंग इज दैट या तो सारे रो उठा लो, या तो सारे कॉलम उठा लो, या डायगनल उठा लो। डायगनल पे आई थिंक बात जानी नहीं चाहिए, ठीक है, कभी नहीं जाएगी बात। या तो सारे रो उठा लो, या तो सारे कॉलम उठा लो, दैट्स फाइन, ठीक है। उस केस में ही सारे कवर हो जाएंगे, बिकॉज जब तुम डायगनल भी उठा रहे हो, तुम देखो एक तो सारे ले लो, 3 to 2 तुम सारे लोगे, रो में जितने या तो कॉलम के हैं जितने वो सारे लोगे, और रो में से भी सारे लोगे, तो रो में से मिनिमम ही ले लो ना, इट्स बेटर, ठीक है। तो हाँ, डायगनल उठाने की कभी बात नहीं आएगी। तो या तो सारे रो उठाने हैं तुम्हें, रो उठाने का मतलब क्या है, 1 4 1 उठाना है और यहाँ से मिनिमम चूज करना है 2, और उसको रिपीट कराना है 3 बार, 3 बार रिपीट होगा, बिकॉज 1 4 1 ऐसी थोड़ा ना आ रहे हैं भाई, 1 4 1 सेल की तरह आ रहे हैं। तो ये 2 के साथ सेकंड कॉलम, कोई ना कोई कॉलम तो होगा ना भाई, ठीक है। तो वो कॉलम तुम्हें चूज करना है कि किसी कॉलम की एक पूरी रो बुक कर ली मैंने, व्हाट डू यू मीन, किसी कॉलम की सारी रो बुक कर ली मैंने, 2 की मैंने सारी रो बुक कर ली, या इस 2 की मैंने सारी रो बुक कर ली, तो मेरी कॉस्ट बनेगी, बट वो ज़्यादा होगी, लाइक 2 + 2 + 2 6, तो यही हो गया 1 4 1, ये तुम्हारा कितना हो गया, 6 + 6 हो गया 12 हो गया, नहीं। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि भाई एक तुम रो उठाओ, ओके, मिनिमम वाली भाई, अगर जब जो तुम एक उठा रहे हो वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए। तुमने सारे कॉलम उठा लिए बिकॉज कंडीशन तुमने वैसे पूरी कर ली, 3 to 2, तुमने सारे कॉलम उठा लिए तो कंडीशन पूरी हो गई, अब यहाँ से तुम मिनिमम उठा लो, तो 1 को 3 बार रिपीट करा दो, एंड दैट इज अ गुड थिंग। चलो अब कोड पे चलते हैं, और आई थिंक कुछ लोग या कंस्ट्रक्टिव है, तो इसलिए कुछ लोगों को थोड़ा सा हो रहा होगा इसमें क्या करें क्या ना करें, बट आई थिंक काफ़ी लोगों ने कर लिया था बहुत जल्दी, और मतलब हाँ हमने भी एज सुन आई थिंक, मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा एज कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन, ऑब्वियसली बिकॉज आई स्टार्टेड अ बिट लेट एज वेल, बट छोड़ो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से कल ही है स्टार्ट, देख लेंगे अगर जल्दी स्टार्ट कर सकते तो। और चलो हाँ, क्या करा कि छोटा उठाना है, सबसे छोटा उठाना है, तो A0 उठाया, सॉर्ट कर दिया था, तो A भी छोटा हो गया, एंड BCO भी सबसे छोटे वाला है, इनटू N, ओके। एंड समेशन ऑफ A इज मतलब कि A में जितने सारे उठा लिए और यहाँ से छोटा उठा लिया और उसको सबके साथ जोड़ दिया, तो इनटू N आया, ठीक है। यहाँ से सबसे छोटा है तो N आया, और असेंबली उठा ली, तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि रो उठा लो सारे, या तो कॉलम उठा लो सारे, और वो तो उठाएंगे तो हमें समेशन ऑफ ए मिलेगा, समेशन ऑफ बी मिलेगा, बट उसके साथ साथ तुम्हें मिनिमम वाला चूज करना है, कि जैसे बी के मैंने सारे उठाए, 3 3 2 उठाया, तो यहाँ से मिनिमम उठाना है और तीनों बार आएगा, ऑब्वियसली यू आर गेटिंग इट कि इसकी तो कोई बात ही नहीं है ना कि, या सो 1 × 3 + ऑल इधर, या फिर यहाँ से तुमने मिनिमम उठाना है 2 × 3 + दिस का सम, तो वो तो अच्छा नहीं होगा इस केस में, किस केस में अच्छा हो सकता है, तो इसलिए दोनों का मिनिमम लिया है, ठीक। और डायगनल की मैंने जैसे बात करी कि ओके नॉट नीडेड, बट या सोचने का तरीका ऐसे बिल्ड करो कि हाँ, या तो सारे रो उठा लो, सारे कॉलम उठा लो। तो उस प्रॉब्लम में भी उन्होंने यही बोला था कि XY, इफ यू रीड द प्रॉब्लम, तो मेक इट अल्टरनेटिंग, हाँ ये भी अच्छा प्रॉब्लम था। टीम नोट इसके a string S, एंड ऑब्वियसली C से अच्छे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं यार, तो हाँ। एंड स्ट्रिंग है तुम्हारे पास दी हुई है, तुम्हें तो इंटीजर प्रिंट करने हैं। First is the minimum number of operation you need to perform to make it good, and second is the number of different ways you can make the operation. तो देखो ये अच्छा केवल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर प्रिंट करने थे। Okay, let me first read out the problem. Given a binary string and उसमें तुम्हें ठीक है, स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग है, 0 1 0 1 हो सकता है, तुम्हें उसको गुड स्ट्रिंग बनाना है। गुड स्ट्रिंग वो होती है जो ऑल्टरनेट स्ट्रिंग हो। ऑल्टरनेट स्ट्रिंग क्या होती है, जिसमें 0 1 0 1 आए या फिर 1 0 1 0 आए और कोई भी साथ का नंबर, ओके यू नो लाइक ऑल्टरनेट स्ट्रिंग, नो टू कैरेक्टर्स एडजेसेंट कैरेक्टर शुड बी सेम, दैट्स द थिंग, ओके। अब कैसे बनाओगे तुम, इरेज करोगे कैरेक्टर्स को, एक ऑपरेशन में कोई सा भी कैरेक्टर जाके उड़ा दो, ठीक है, इरेज कर दो कोई सा भी कैरेक्टर, कोई सा भी कैरेक्टर,
Alternating, you perform either adjacent character should be different. सिंपल सी डेफिनेशन है. गोल इज टू हैव टू वैल्यू. फर्स्ट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, जो कि बहुत ही सिंपल है. मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है कि इसमें तुम्हें कितने नंबर कैरेक्टर उड़ाने पड़ेंगे टू मेक इट गुड. बताओ. तुम देख लो यार कि अगर वन वन 3 बार साथ में आया तो मैं 2 1 उड़ा दूंगा, इसमें से एक 1 बचेगा बस. 0 0 साथ में आया तो एक 0 उड़ा दूंगा. तुम्हें देखना है कि जैसे 1 1 1 1 है, 0 0 1 0 1 0. अरे यार, कहाँ लिखूं मैं. आई एम सेइंग दैट इज इक्वल टू 1 1 1 0 0 1 1. इस केस में आंसर कितना होगा बताओ. 1 1 1 में से एक 1 लूंगा, 0 0 में से एक 0 लूंगा, अगले 1 1 1 में से भी एक 1 लूंगा. ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग गिवन है. ठीक है. ओ भाई, लैग कर रहा है यार. कहाँ लिख दिया इसने. कोई नहीं, वहीं चलते हैं, बड़ा करना पड़ेगा. तो ये मेरी स्ट्रिंग है. ठीक है, 1 1 1 0 0 1 1. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक 1 उठाऊंगा, यहाँ से एक 0 उठाऊंगा, यहाँ से एक 1 उठाऊंगा, इसको बना दूंगा 1 0 1. इससे बेहतर और कुछ बन सकता है नहीं भाई. तो यहाँ से मैंने कितने उड़ाए, 2 उड़ाए. यहाँ से मैंने कितने उड़ाए, 2 उड़ाए. यहाँ से भी मैंने 2 उड़ाए. तो ये कैसे पता चला मेरे को कि मैंने देख लिया भाई कितनी नंबर ऑफ टाइम. आई थिंक ये तो बहुत बेसिक चीज़ है यार. कितनी नंबर ऑफ टाइम ये रिपीट कर रहा है और उसमें से -1 कर दो. या उसमें एक ही लूंगा. 0 चाहे 3 बार हो या फिर 10 बार हो, 0 तो मैं एक ही ले सकता हूँ ना. यहाँ पे 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए. समझ रहे हो. तो एक साथ एक ही 0 आएगा. वो सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने फाइंड कर लिया. अब ये बात है कि ये हम कितनी तरीके से कर सकते हैं. तो ये देखो तुम कितने कैरेक्टर उड़ा रहे हो. ठीक है, और कितने कैरेक्टर उड़ाए थे हमने. 2 + 2 + 2. ठीक है, 3 केस थे. तो हमने 6 कैरेक्टर उड़ाए थे. 6 फैक्टोरियल तो जुड़ेगा भाई, पहली चीज तो ये. अच्छा, क्योंकि इसमें तुम कोई सा भी ऑर्डर चूज कर सकते हो ना. आर यू गेटिंग इट. जैसे तुम्हें कौन सा उड़ाना है, तो तुम्हें 0 1 उड़ाना है. ठीक है, 0 1 2 में से आपको ये इंडेक्स है, इंडेक्सिंग में कर देता हूँ एक बार. ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8. तो तुम कैसे बोलोगे कि भाई काफी सारे तरीके हैं. एक तरीका है कि अपना तुम्हें कितने कैरेक्टर उड़ाने हैं. पहली बात तो देखो, 6 कैरेक्टर हमें उड़ाने पड़ेंगे. उड़ाने के कितने तरीके हैं, 6 फैक्टोरियल तरीके हैं. ये चीज समझ रहे हो. 6 फैक्टोरियल तरीके क्यों है, क्योंकि वो जो 6 कैरेक्टर तुमने चूज करे, इस पहले बात तुमने इसमें से 6 इंडेक्स चूज करे. ठीक है, ओके. बट ऐसा नहीं कि कोई से भी 6 इंडेक्स चूज करने, तो मैं 9 C 6 कर दूंगा. नहीं, यहाँ से 2 चूज करे, यहाँ से 2 चूज करे, यहाँ से 2 चूज करे. ठीक है, और वो जो 2 था वो भी ऐसे ही नहीं आया था, वो आया था 3 C 2 से, 3 C 2 से, 3 C 2 से. ओके, वट एवर इट वुड बी. जैसे 5 चार 5 होते हैं यहाँ पे 1, या फिर जितने भी होते. 5 C 4 करता मैं. ठीक है, या 5 C 1 करता तो 5 आता ना. तो ये चीज़ समझ रहे हो. पहली बात तो 5 2 2 आया मान लो. ठीक है, कितने कैरेक्टर उड़ेंगे, 5 2 2, कितने कैरेक्टर तो उड़ेंगे, तो उतना फैक्टोरियल तो आएगा जितने कैरेक्टर उड़ रहे हैं. तो 9 फैक्टोरियल आएगा. चूज करने के कितने तरीके हैं भाई. 5 + 2 + 2. ठीक है, मतलब ये तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उड़ रहे हैं. ठीक है, सो ये चीज़ आएगा यहाँ पे. ठीक है, ये जो नंबर है ये तो हमें पहले भी रिटर्न कराना ही है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उड़ेंगे. 9 कैरेक्टर उड़ेंगे, तो 9 × 9 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल किसके लिए.
अच्छा 5 × 2 × 2, अच्छा तो 5 इधर जोड़ेंगे, 5 उड़ाने हैं, ठीक है 5 चुनो, 5 × 2 × 2 × 9 फैक्टोरियल, ठीक है 9 फैक्टोरियल। तो ये है कि तुमने चूज कर लिया, उसके बाद उड़ाने के तरीके, भाई 9 फैक्टोरियल तरीके हैं उड़ाने के, क्योंकि देखो 9 इंडेक्स में चूज करूँ उड़ाने के लिए, और मैं इंडेक्स किसी भी ऑर्डर में चूज कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, पर ये 5 चूज करने के 5 तरीके, इनटू 2 चूज करने के 2 तरीके, इनटू 2 चूज करने के 2 तरीके, ठीक है। प्लस नहीं करूँगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, बस एंड है यहाँ पे, हमें यहाँ से 5 चूज करने हैं, हमें यहाँ से 2 चूज करने हैं, हमें यहाँ से 2 चूज करने हैं, ये 5 तब चूज होंगे जब ये टोटल 6 होंगे, उसमें से 5 निकलेंगे, है ना 65। तो जो भी है ऐसा ही कुछ है, देख लो यहाँ पे सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने ठीक है यार, काफ़ी इसमें पंगे हुए थे, बट यही है, एक तो फैक्टोरियल वाली चीज़ है, लॉन्ग लॉन्ग वाली चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फैक्ट और मॉड की चीज़, पहले तो मैं मॉड ही 9 + 7 ले रहा था, तो मॉड स्पेशल है। सो 9 फैक्टोरियल इज बेसिकली कि कितने नंबर ऑफ इंडेक्स हमें उड़ाने, उसका फैक्टोरियल इनटू कितने तरीके हैं ये चूज करने के, इज इक्वल टू 5 × 2 × 2, यहाँ से 5 चूज करने के 5 तरीके, 2 तरीके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये पी जो कर रहा है ना, पी इनटू इक्वल टू सी, तो पहले तुम कोड देखो यहाँ पे, एस एम इक्वल टू 0 विच इज द फर्स्ट थिंग के लिए कि हमें यूज़ होगा ये पी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 1 इज अ काउंटर। तो मैंने देखा कि भाई ये काउंटर, ये जनरल तरीका होता है कि हाउ डू यू गेट द कंटिन्यूस स्ट्रिंग में, बाइनरी स्ट्रिंग में एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है 0 0 0, जैसे ये हाउ विल यू गेट दिस कि 6 3 3 दिस इज माई रिपीटिशन, तो वो सी के अंदर मेरा प्लस होता जाएगा कि 0 कितनी बार आया, 6 बार आया, इसमें से लेना कितना है, एक ही लेना है, सो वो मेरा काउंटर है। तो काउंटर ठीक है, काउंटर प्लस प्लस। अब जब 0 से 1 का ट्रांजिशन हो रहा है, तो मैंने देखा कि भाई पिछला कैरेक्टर कितनी बार आया था एक साथ, वो 6 बार आया था, मेरे को कितना लेना है उसमें से, 5 लेना है, तो सॉरी एक ही लेना है, तो एस एम प्लस इक्वल टू 5, पहली चीज़ जिससे मेरे को मिलेगा कि कितने कैरेक्टर उड़ाने हैं, 5 कैरेक्टर उड़ाने हैं। अब कौन से 5 उड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर लो भाई प्रोडक्ट में, कोई से भी 5 चूज कर लो, 6C5 कह लो उसे, या फिर 6C1 कह लो, सॉरी 5C1 कह लो, या ये 6 में से 5 उड़ाने हैं ना, इसलिए यहाँ पे इंटू सी हो रहा है, C-1 नहीं हो रहा। 6C1 चूज करना है तो हमें, 5C1 5 तो उड़ाने हैं, पर 6C1 चूज करना है या 6C5 चूज करना है उड़ाने के लिए, किसी भी देख लो, लेट्स से 6C1 चूज करते हैं रखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इंटू पी रहा है, और लास्ट में एफ ऑफ एस एम इज द की एस एम, ओके व्हाट इज एस एम की कितने कैरेक्टर उड़ रहे हैं टोटल, और उसका फैक्टोरियल लेके मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऑब्वियसली उसको उड़ाने के फैक्टोरियल तरीके ना, किसी को भी पहले उड़ाओ बाद में उड़ाओ फर्क नहीं पड़ता। अभी फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिए थे मैंने एज अ प्री कॉम्पिटिशन, भाई टी एल ही आ जाएगा वरना, तो दिस इज अ प्री कॉम्पिटिशन एंड मॉड यहाँ पे लेना पड़ा था, ये स्पेशल वैल्यू है, यही था बस, बाकी मॉड वॉड चेक कर लेना। ओके गाइस दैट्स इट, बाय।